جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ شروع ہوئی ہے، بالخصوص تاریخ کے اعتبار سے قابیل اور حابیل کی قربانی کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، اور کوئی امت ایسی نہیں کہ جس امت پہ اللہ نے قربانی نہیں رکھی، لیکن فرق ہے پہلی امتیں قربانی دیتی تھیں تو فوری رزلٹ آ جاتا تھا۔ جانور ذبح کیا جائے، کسی میدان میں چھوڑ دیا جائے، جسے آگ آ کے بھسم کر دیتی تو یہ پہچان ہوتی کہ فلاں بندے کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ آج ہم میں ہوتا تو میڈیا کا دور تھا، ہر گلی میں لوگ کیمرے لگا کے کھڑے ہوتے کہ پتہ کرو بڑا بنا پھرتا ہے، قربانی دی ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ دعا ہے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور یہ پردے ہیں ہمارے رب کے امت محمدیہ پر، جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ گفتگو میں یہ نکتہ سمجھیے گا کہ پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے لوگ قربانی کے اوپر متفق ہیں، اور ہر مسلک قربانی کر رہا ہے۔ وہ قربانی جو بعد کی ہے، جب سب کا اس پہ اتفاق ہے، تو اس قربانی سے پہلے جو 20 قربانیاں ہیں ان پہ ہم اتفاق کیوں نہیں رکھتے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہی آج کی گفتگو کا مدعا، مقصد اور ہدف ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں پہلے ایک گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ جو بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن اندر کھاتے ہیں، ان کے سارے درد یا تو حج پہ جاگتے ہیں یا قربانی پہ جاگتے ہیں۔ کشتی کا حادثہ ہوا، سارے ٹوٹ پڑے کہ یہ قربانیاں چھوڑو، جانور ذبح کر کے کیا ملے گا۔ اس طرح کے غریب غربا کو اگر یہی 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ دیا ہوتا تو آج یہ بیرون ملک ڈنکی پہ جا کے ظالم لہروں کے اور ان لوگوں کے جو انسانی سمگلنگ کرتے ہیں ان کا شکار اور لقمہ اجل نہ بنتے۔ گزارش ہے، بیت اللہ کے حج پہ چند لاکھ کے خرچے پہ پریشان ہو جاتے ہیں، قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے اور نہر ہوتے دیکھ کے تکلیف ان بیچاروں کی حق بجانب ہے۔ لیکن ہم ذرا گزارش کر دیں کہ آپ کی یہ تکلیف روزانہ کی بنیاد پہ اربوں روپے کے پیسے کو جو آگ سگریٹ کے نام پہ لگتی ہے وہاں کیوں نہیں جاگتا؟ جب ایک شخص گھر میں گاڑیاں ہوتے ہوئے پھر 1 کروڑوں کی نئی گاڑی لیتا ہے، آپ کا احساس اس وقت کیوں نہیں جاگتا؟ لہذا اللہ کے شاعر کے خلاف جتنی مرضی ذہن سازی کر لو، اللہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ غریب ہو کے بھی، کمزور ہو کے بھی، یہ بھی سوال آتا ہے کہ ادھار اٹھا کے قربانی کر لیں۔ قربانیاں جیب سے یا پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دل سے ہوتی ہیں۔ حج اور عمرے بھی
یہ صرف نوٹوں سے نہیں ہوتے، یہ وہ تڑپ ہے، وہ درد ہے، وہ دل، وہ تمنا، وہ آرزو ہے جو اللہ ایک مومن کے دل میں ڈالتے ہیں. اور یہی دعا آپ مجھ سے قبل سارے مل کے کر رہے تھے کہ اللہ اس سال موقع نہیں بنا تو اگلے سال سے ہی. آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ جو ہر قربانی پہ، ہر حج پہ اتنا زیادہ قوم کا درد لے کے پھرتے ہیں، اسے سنبھال کے رکھیے. یہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں غریبوں کے اوپر سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے، وہ آج بھی امت مسلمہ ہے. یہ عشر کو چلائیں، نصف عشر کو چلائیں، صدقات کو چلائیں، زکات کو چلائیں، گھر گھر کو ڈھونڈ کے بچے، خواتین، مرد، عورتوں تلک اگر پہنچتے ہیں تو آج بھی یہ مسجد اور مدرسے سے جڑا ہوا ماحول ہے. وگرنہ باقی لوگوں کو صرف درد اور تکلیف اور احساس کا ایک وقتی جنون تو ہوتا ہے، لیکن سدا بہار وہ اس نعمت سے محروم ہے. اس گزارش کے بعد میں پوری امت مسلمہ کو 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والوں کے جتنے مسالک ہیں انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی بہت اچھی بات ہے، قربانی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس قربانی کے لیے اس سے پہلے جو بنیاد میں قربانیاں رکھی ہیں اسلام نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام آدم علیہ السلام سے چل کے جناب خاتم اور جناب خاتم علیہ السلام سے چل کے قیامت کے روز تلک ایک ہے، وہ بدلہ نہیں ہے. یہ دین وہی ہے، اور اس دین میں جتنے بھی معاملات اور عبادات رکھی گئی ہیں ان کے اندر بنیاد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت. اور یہ توحید مختصر سمجھ لیجئے، کائنات کی ساری ذاتیں مل جائیں اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح اللہ نے اپنی یہ خوبی، اپنی فطرت اس پہ انسان کو بنایا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس فطرت میں بے شمار خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اصل میں اللہ کی صفات ہیں. اللہ نے انسان کو ودیت فرمائی ہے، لیکن وہ صفتیں لے کے، وہ عادات لے کے، وہ فطرت کی بیس لے کے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اس چیز کا مالک بن گیا ہے. یہ رب کی عطا ہے، وہ دے تو اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، ماں کے پیٹ میں دے کے لے لے اس کی مرضی، دنیا میں جنم سے پہلے وہ بلا لے اور صفت ختم کر دے، یہ اس اللہ کی مرضی ہے. کوئی اسے کہنے والا نہیں کہ ایسے کیوں ہے اور ایسے کیوں ہے. حضرات گرامی، یہ اللہ کی صفتیں کہیں دھوکہ نہ دیں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی صفات میں یہ اصول یاد رکھیے گا. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، ہمارے کان ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہمارے بھی ہیں، رب کے قدم کا اس بات ہے، قدم ہمارے بھی ہیں، اللہ کے وجود کا تذکرہ ہے، وجود ہمارا بھی ہے، تو اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے رب جیسے ہو گئے ہیں. لیس کمثلہ شیء، یہ صرف ناموں کی مشابہت ہے. مثال، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، تو کیا ہم رب کے شریک بن گئے، رب جیسے ہو گئے؟ نہیں، ہماری زندگی ادھار ہے، مستعار ہے، رب کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا نہیں ہے. کس موڑ پہ لا کے کب 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ کلر کہار کا حادثہ آپ کے سامنے ہے. یہ کشتیوں میں مرنے والے
आपके सामने है। दिन रात हम हादसे देखते हैं। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये हादसे सबक देखते हैं कि कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है, किसी को बचा रहा है, किसी को मरवा रहा है। मेरी आंखों के सामने हादसा होता है, मोटरसाइकिल पे आगे बेटा बैठा है, छोटा सा, बाप चला रहा है, मां की गोद में एक छोटा सा बच्चा है, मां हामिला है, ये डंपर के नीचे आते हैं, सारे मर जाते हैं, और मां के पेट के अंदर जो बच्चा है, टायर गुजरने की वजह से वो पटाखे के साथ निकल के लोगों को वो पैदा कर रहा है। आपने जलजले में देखा, जब दुनिया मर रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी, वहीं एक बच्चे का जन्म लेना, ये तेरे रब की वहदानियत, सिफात में वहदहू ला शरीक, जात में वहदहू ला शरीक होने की दलील है। इसी तरह तीसरी चीज जो तौहीद के लिए जरूरी है, सारा जग मिलके तेरे रब को झुका नहीं सकता, वो अकेला सबको झुका सकता है। झुकाने की ताकत ये सिर्फ अल्लाह की है, वो इसीलिए माबूद है, हम इसीलिए आबिद और बंदे हैं। वो चाहे तो फिरौनों को झुका दे, नमरूदों को झुका दे, कारूनों के सर झुका दे, वो अबू जहलों को यूं मट्टी में मिला दे, लेकिन ये सारी ताकतें मिलकर तेरे रब की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो चाहे तो जमीन को हिला दे, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये सारे मिलकर तेरे रब के अर्श को नहीं हिला सकते, इनकी अप्रोच वहां तक नहीं, लेकिन सारी दुनिया तेरे रब की मुट्ठी में है, और तेरे रब के जो है वो दायरा कार में है, तसर्रुफात में है। इसलिए सर झुकाया जाएगा तो सिर्फ उसके सामने जिसने इसे बनाया है। सारी दुनिया मिलके आए और किसी खातून को कहे काट के रख देंगे सजदा कर, मर्द को कहे तेरा कीमा बना देंगे सजदा कर, तुझे मार दिया जाएगा। मेरे और आपके मुर्शिद हादी और रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला तुशरिक बिल्लाह, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्ते ताऊ हुर्रिक, तेरे टुकड़े कर दिए जाएं, कीमा बना दिया जाए, हड्डियों का चूरा बना के पीस के आग लगा के राख कर दिया जाए, तूने मेरी तौहीद पे कंप्रोमाइज करके शिरक नहीं करना। यह तौहीद हर इबादत की असास, हर नबूवत के और रिसालत के इस दुनिया में चलाने का बुनियादी सेरा, वो अगर था तो तौहीद के लिए था। इसी तौहीद के ऊपर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 20 कुर्बानियां दी। हजरात, मुझे आपकी इस वक्त तवज्जो थोड़ी मकसूद है, बड़ा अहम बुनियादी नुक्ता। मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 27 गज़वे और हिजरत के सफर, और फिर वो सफर जो आपने तिजारत में किए हैं मिलाए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफर सुन के देख करके अकल दंग रह गई। ये जो सुन्नत अबीकुम आप पढ़ते और सुनते हैं कि कुर्बानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उस सुन्नत को लिया हमारे महबूब ने, वो बनी उनकी सुन्नत, उनसे लिया उनकी आल ने और असहाब ने, ये बनी उम्मत मुस्लिमा की सुन्नत, उनसे लिया हमने, ये बनी मोमिनीन की सुन्नत। ये सुन्नत के पीछे क्या है, आप दंग रह जाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा होते हैं। इराक में बाबल की सरजमीन में, बाज ने 7 कुर्बो जवार में एक और इलाके का नाम लिखा है, तो ये इलाके वक्त के साथ नाम तब्दील होते रहते हैं, डिवीजन बदलते रहते हैं, सूबे बसा औकात बदल जाते हैं, चेंज आ जाती है, सिले बदल जाते हैं। तो ये कोई वो तब्दीली हो सकती है, वगरना इराक की सरजमीन है, बाबुल है, वहां आप पैदा होते हैं, जवानी में आते हैं, सारी कुर्बानियां
जिनका मैं अभी थोड़ी देर में तज़किरा करने वाला हूं, उनमें से एक इंतहाई होशरुबा दिल दहला देने वाली कुर्बानी थी कि वतन छोड़ दे। जलावतनी। इस जलावतनी में अपनी अहलिया को लेके इराक से शाम निकले। कहना बड़ा आसान है, आइए यहां से निकलिए, करीब जरा अफगानिस्तान का सफर कीजिए, पता चल जाएगा यहां से पैदल घोड़े गधे पे, पता चल जाएगा कि सफर क्या होता है, जलावतनी क्या होती है। मौसम, हालात, लोग, मुखालफत, अजनबीयत। शाम से फिलिस्तीन गए, फिलिस्तीन से मिस्र का सफर, मिस्र से जब हालात मजीद खराब हुए, लुबनान, लुबनान से उर्दन, उर्दन से सऊदिया की मौजूदा हुदूद तबूक, वहां से मदीना, मदीने से मक्का, मक्के पहुंचते ही बीवी बच्चे को छोड़ करके फिर हुक्म मिले कि वापस लौट जाओ। ये कुर्बानी अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ अल्लाह को वादा उला शरीक मानने वाला दे सकता है, वगरना आज के दौर में यह चीज मुमकिन नहीं। इस पैगंबर ने कितने सफर कर डाले, आधी दुनिया कदमों के नीचे रख के, हनीफ बन के, मुवाहिद बन के, अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए पूरी जिंदगी कुर्बानी का नमूना बना दी। आयत तो कुरान मजीद की है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन कभी देखना हो तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। वो पैगंबर जिनको कहा गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चाल ढाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मगर सूरतुल मुम्तहना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उस वक्त जिन्होंने उनका साथ दिया, उनकी जिंदगियों को रब ने लक़द कानत लकुम, ये ऐसे ही नहीं है, अल्लाह ताला की वो हस्ती, वो जात जो पैगंबर को, मोहम्मद रसूल सल्लम को हमारे लिए उसवा बनाए, और जब तज़किरा करे मोहम्मद रसूल सल्लम का तो उनके लिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसवा बनाए, तो पीछे कुछ है। आइए वो ढूंढिए क्या है। पहली चीज, तारीख ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अबाउ अजदाद के ऊपर एक लंबी बात की है, मुझे उससे हट के जरा कुछ कहना है। जवानी है और बाप उस वक्त और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पेशा गॉड मेकर है। कुछ होते हैं किंग मेकर, जो बादशाह बनाते हैं, बड़ा नाम होता है उनका। आप पाकिस्तान में माशाल्लाह वाकिफ है कि सियासत की बागडोर किन के हाथ में होती है, हर शहर सल्यूट कर रहा होता है, मगर वो किंग मेकर नहीं, गॉड मेकर, कौम के इला बनाने वाली हस्ती। उस घर में आंख खोली है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। बाप बड़े कमाल के उस वक्त के 12 महीने 12 बुत बनाते थे। 12 महीने 12 बुत। जैसे हमारे हर महीने में कोई ना कोई उसूल, ज़ाब्ते, रसूम, रिवाज, आदात मौजूद हैं। हर माह का बुत, और सेल लगती थी, कमाल लगती थी। वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये काम सीख लो, ये काम सीख लो। यहां बड़े सारे इंशाल्लाह आज मसले हल होंगे। अब्बा जी का कोई पेशा हो ना, वो भी 2 नंबरी का, गलत। हम हर चीज का फतवा पूछेंगे, लेकिन ये फतवा नहीं पूछेंगे हलाल है या हराम है। चल यार खानदानी काम है, जे किसी होर नूं दिता या असी अड्डा छड्डिया तो कोई होर आके बह जू, करी जाओ। जेड़ा मौलवी बोलन लगे विचों थोड़ा जिहा चंदा भेज दो, और वो बड़ी मोहब्बत से कहेगा फुलां भाई इतने की रसीद कटवा गई है। कहा अब्बा जान या अबाती, अब्बू जी बड़ा नाम है इस पेशे का, आप इनके गॉड में करो, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता, ना मैंने सीखना है ना मैंने करना है। खैर बाप ने धमकी लगाई, बात आगे चली। कहा अच्छा बनाना नहीं तो फिर तू इदा कर, डिस्ट्रीब्यूटर बन जा।
मैं बनाई जाना, तू अगे बेची आ, मार्केट च कड़ी आ, मार्केटिंग च आ जा। भाई आजकल तो मार्केट के अंदर जो लॉन्च है वो लॉन्च है, आपको पता है। गॉड मेकर का बेटा, अभी मैं नाम की बहस पे आज वक्त नहीं है, वगरना बताता कि अब्राहम अब्राहम, अबू रेहाम इब्राहिम, ये नाम क्यों पड़े थे। खैर उठे और कहने लगे अब्बू जी मैं पेशा कुर्बान कर दूंगा, मगर जो पेशा तौहीद के खिलाफ हो मैं जूते की नोक पे रख के कुर्बानी दे दूंगा। सर जी आज हमारे कितने पेशे हैं जो खिलाफ शरीयत हैं, खिलाफ तौहीद हैं, और प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर बैठ के बड़ा मुतमईन होके बंदा कहता है जी हरज की है। भाई हरज तो कोई नहीं है, हरज तो किसी चीज में नहीं, आप उल्टा भी लटक जाए हमें क्या हरज है। प्रॉब्लम तो यह है कि वकार किस में है, दीन किस में है, मेयार किस में है। खैर बात चली, कहा पेशा भी कुर्बान, कहा चलो यार मार्केटिंग कर लो। भाइयों मार्केट करते हुए जब इस जेब में भी पैसे आ जाएं तुसी कहोगे है नहीं, इशारे करी जाता है, हमने रखी नहीं है ये वाली बाजू वजूहात पे। इधर भी डबल पॉकेट पैसे, साइड पे भी दोनों पे पैसे, शलवार वाली पॉकेट में भी पैसे, हाथ के अंदर माशाल्लाह बरीफ के थैले, शॉपर डबल ट्रिपल उनमें भी पैसे। तो फिर बंदे का दिल करता है इस तरह की चीज को कुर्बान करने का। और जब मार्केट में महंगा तरीन पीस बिक रहा हो, पता करो जरा चनियोट में आके क्या क्या नहीं बिक रहा, पता करो जरा चल के टैक्सला में एक कुंडी लैन चले जाओ तो पता लगता है जो बोतो उसे पत्थर दा लैन तो रेट लगता है, बुत मत रेट लगाते हैं। सर जी बात आगे बढ़ गई, बाप ने कहा खैर है, क्या करेगा कल को, ना मेरे वाला काम अच्छा लग रहा है मैं बना के दूं, ना मार्केटिंग अच्छी लग रही है। ओए चलो इतना ही देख ले, डेली तो लगती है ना कोई थोड़ा बहुत अपना हिसाब किताब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेशे की भी कुर्बानी दे दी, डेली की भी कुर्बानी दे दी। मजदूर लोग हफ्ता हफ्ता खाली फिर लें लेकिन किते ना किते डेली लाउनी पै जाती है। पूरी सीरत इब्राहिमी में एक दिन भी ऐसा नहीं कि हालात से मजबूर होके कभी कोई बुत लेके मार्केट में इराक में बाबल में खड़े हो गए हूं कि लोगों ये बुत ले लो, ये पहले महीने का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, 12 महीने खैर के मजे के गुजरेंगे, ये तुम्हारी रखवाली करेगा। ऐसे नहीं हुआ। ये जब 3 चीजें कुर्बान कर ली ना, अब्बू ने पहले खुद समझाया। अब्बा ना वैसे आदत है कि खुद बड़ा मजबूत बन के लोहे की दीवार बन के खड़ा होता है और बच्चे को डांट डपट करके समझाता है। तो अब्बा जी ने कहा पुत गल सुन, मेरे घर रहना ही तो करना पैना है, मेरे घर रहना ही तो करना पैना है, नहीं तो मैं घरों कढ़ दांगा। सर जी शादी हुई हो ताजी ताजी, हाथ में कुछ हो भी ना, ते अब्बा कहे पुत माल बिस्तरा चुक ते टोर। आप समझ नहीं रहे होंगे अभी शायद इस कैफियत को, ये जिन पे बीती है उनसे पता करें कितना मुश्किल है। बेटे ने कहा वो घर भी कुर्बान, जिस घर में रह के मुझे शिरक के मजबूर किया जाए मैं तौहीद के लिए वो घर भी कुर्बान कर दूंगा। बाप ने यह भी कहा था सिर्फ घरों नहीं कढ़ांगा, वट्टे मार मार पत्थर मार मार रजम कर दांगा। सर जी अब्बा एक जुत्ती चुके ना दूजी वारी बंदा को सीधा हो जाता है। ये छितर खाण नहीं मैनू जमया तू, एवं जम के बह गए हैं। या अबाती में फर्क नहीं आया। अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में वो कायम रहा है, लेकिन अल्लाह का अदब उसमें भी नहीं आया। कहा अब्बू जान तेरे बेटे को तेरी नजरों के सामने कर रजम कुर्बान कर दूंगा। जब डट गए 4 कुर्बानियां बाप ने घर में देख ली, 5वीं के लिए भाइयों को बुलाया। यह अब्बा जी का अगला हथियार होता है, हर घर में चलता है, आपने भी देखा होगा। वो अपने ना भरावां नूं भेज दिंदा है, चाचे ताए जे समझाओ यार मेरे वाला मुंडा तो हुण सिर चुकन लग पिया, अगू हाथ भी चुकदा, अगू बोलदा भी है। फिर चचे और ताए में जो अच्छा होता है दबके वाला, जरा थोड़ा जा टहके वाला, वो सददा उरे आ गल सुन। बुलाया, ददियाल आए, इब्राहिम
क्या सुन रहे हैं यार, थोड़ा होश कर। इतना अजीम पेशा, इतना बड़ा कारोबार, माल ही माल, दौलत ही दौलत, इज्जत ही इज्जत, तेरे बाप को किस निगाह से देखा जाता है, तुझे क्या इल्म। कहा कहना क्या चाहते हो। कहा जो वो काम करता है ਉਹਦੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ। कहा ददियाल भी कुर्बान। अगर तौहीद के खिलाफ बुलाए, नुक्ता जुमला एक बोल रहा हूं, अगर चोट लगने पे आए तो बड़ी गहरी चोट है, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। का पूरा ददियाल कुर्बान, अल्लाह की तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं, छठी कुर्बानी लगी है। प्यो ने सौहरियां दी खिदमात हासिल कर लियां ने, अगली चाल हुंदी है नानके, समझदे जे। वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहता नानके किनू किनू प्यारे ने, बहरहाल होते सब कोई है। आए आगे ननियाल बड़े, पुत की होया, कुछ नहीं यारो, रोला पिया है। कहा हां, मुझे कहते हैं वो काम कर जिससे मेरे रब ने रोका है, जो तौहीद के मुनाफी है। कहा फिर क्या करने जा रहे हो, हम रोकते हैं, मान जा। कहने लगे ददियाल छोड़ चुका, कुर्बान कर चुका, बाप कुर्बान कर चुका, घर की धमकी कुर्बान कर चुका, रजम करने की धमकियां सह चुका, पेशे को कुर्बान कर चुका, हां हां अपनी दिहाड़ी कुर्बान कर चुका, माल दौलत कुर्बान कर चुका। अब अगर तुम भी रस्ते का रोड़ा बनोगे, वो ननियाल नहीं चाहिए जो मुझे तौहीद के खिलाफ लेकर के आए। सर जी रुकिए, यहां पे वजीराबाद में बड़े सारे नानके मजबूरी बन जाते हैं, बच्चे इधर उधर से भाग भूग के फिर भी कहते हैं यार मैं गल ते तुहाडी मान लैंदा, कहंदे भी सही जे, पर नाना अबू जेड़े ने ना उन्हां दा मुंह मुलाया मारदा। ठीक हो गया, कुर्बान कर दिया। सर जी अगला पत्ता खेला है कौम ने, और वो पत्ता है यारों का। इतना मजबूत पत्ता है, इतना मजबूत कार्ड है। दादाजी ने सुबह उठाया, बच्चा नहीं उठा, बाप ने उठाया नहीं उठा, मां ने उठाया नहीं उठा, भाइयों ने उठाया नहीं उठा, बहनों ने उठाया ये नहीं उठा। बाहर एक मखसूस कोड वाला हारन बजया दरवाजे ते, मेन गेट ते, नाल पोली जी सीटी, छाला मारदा उठ के भज के गया। आ भी मलन की लोड़ नहीं, पता की लग्या कि यार आए ने। मुंह भी नहीं धोता तो कुछ नाश्ता भी नहीं किया, खादा पीता भी नहीं, छड़प्पा मारिया तो बैग ते नाल बह गया। सारे घर वाले कहते साडी की वैल्यू, साडे नालों ते यार ही चंगे रहे। यार जो मनवा लेते हैं ना, वो कोई रिश्तेदार नहीं मनवा सकता। अक्सर घरों की यही परेशानी आती है, मौलाना कोई वजीफा बता दें, बच्चा यारों में ज्यादा बैठने लग गया है, उन्हें तवज्जो और अहमियत ज्यादा देता है, हमारी परवाह ही नहीं है। घर घर की कहानी है। आए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, सर जी यहां रोकूंगा, बैठे हुए हैं, थोड़े अफसुर्दा हैं, तो कहने लगे इब्राहिम की होया है, पता तो सी पर यारां दा अपना अंदाज। कहंदे छड्ड मेले ते चलीए, 2 मिनट खावांगे पीवांगे, इधर उधर दियां जिवें हुंदियां ने, दरिया ते रुकांगे, मौज मस्ती करांगे, तुम ही फ्रेश हो जाएगा। कहा मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, जाओ शाबाश। इन मेलों और ठेलों और दुनियावी रौनकों से हमें खुशियां नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। इन्नी सकीम, जैसे बीमार को मीठा मशरूब भी कड़वा लगता है, रब की तौहीद के पहरेदार को ये मेले, ये ठेले, ये सर्कसें ये अच्छी नहीं लगती। जाओ अपना काम करो। यारों की भी कुर्बानी दे के रख दी। दे पाओगे यार, मैं कला एक पासे हाँ, मेरे 10 यार एक पासे ने, हुण मौलाना मैं की करा। वो भाई उन 9 को तौहीद पे लेके आ, दावत दे, कुर्बानी कर, भले ऊंट की कर, कुर्बानी कर गाय की कर, कुर्बानी कर बकरे छतरे की कर, कुर्बानी कर जो मर्जी करनी है, लेकिन उस कुर्बानी से पहले
आज उन यारों के याराने और दोस्ताने को भी देख जो तुझे गुमराही की तरफ, जलालत की तरफ, शिरक की तरफ, रसूम की तरफ, रिवाज की तरफ लेकर के माइल हो रहे हैं, कायल हो रहे हैं, और तू घायल हो रहा है। ये भी कोई कुर्बानी देगा? और याराने सिर्फ जवानों के नहीं होते, बाबियां दे भी बड़े जे। मंजा ग्रुप, थड़ा ग्रुप, ताश ग्रुप। कल मैं एक इलाके च परसों गया ते उथे मलंगी बूटी ग्रुप, मलंगी बूटी ਤੁਹਾਡੇ भी लागे लागे होंगी है थोड़ी बहुत पंग जी, भंगी ग्रुप, ये फुला ग्रुप, बस बैठे वक्त गुजर रहा है। आइए एक और कुर्बानी होने लगी है। कौम ने अपने उस दौर के जो नजरियात थे वो ला करके मुनाजराना हैसियत में पेश किए। कहा इब्राहिम हर वेले गुस्से च नहीं रहीदा, थोड़ा जिहा सोच। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਲਾਈਟ ਜੂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪ ਵੀ ਦਵੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਦਵੇ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਵੇ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਵੇ, ਏਸੀ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਠੰਡ ਵੀ ਪਵੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਯਾਰ ਭਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ सूरज इना कुछ देन दिया तो फिर भी अल्लाह नहीं। रात को हसीन चांद बनाए, सितारे टिमटमाए, क्या ये रब नहीं है, इला नहीं है? तेरा बाप जिनको घड़ के करता है चलो उनसे तो तेरी नाराजगी हुई, ये तो आल ओवर द वर्ल्ड पड़े हैं। आ देख, कहा ठीक है चलते हैं। सितारे देखे टिमटमाते रहे, बुझ गए। कुर्बान जाऊं कुर्बान, कुरान तेरी अदा पे। आए सितारों को देखा, क्या बोला जब बुझे ना? कहा याद रखो इन सितारों से क्या पूछूं कब दिन मेरे फिरते हैं, ये तो बेचारे खुद हैं भिखारी, डेरे डेरे फिरते हैं। अब कहीं कल कहीं, रात कहीं, अगले घंटे और कहीं। चांद डूबा कहा कुर्बान, सूरज गरूब हुआ कहा कुर्बान। कहा तुम्हारा ये इल्म नुजूम भी कुर्बान, कुर्बानियां दे के रख दूं। ये सारे मखलूक हैं मेरे रब की जो इनको पैदा करने वाला है। तुम्हारा सफर चांद सितारों पे रुक गया, मेरा सफर इनके खालिक और मालिक और अर्श बरी के जो है वो इला और माबूद तलक है। मैं तुम्हें उनकी दावत देता हूं। बड़े सारे लोग आएंगे। पता है कुर्बानी से पहले अगर ये नुक्ता समझ आ गया तो आपका आज कैसे गुजरेगा, आपका कल कैसे गुजरेगा, आपका अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, आपका महीना कैसे गुजरेगा, आपका साल कैसे गुजरेगा, आपकी कुंडली कैसे गुजरेगी, आपकी ये मंगनी कैसी रहेगी, आपकी ये शादी कैसे रहेगी, आपका ये होने वाला मंगेतर कैसा रहेगा, आपकी मंगेतर कैसी रहेगी, तेरे हाथ की लकीरें क्या बोलती हैं, तेरी कुंडली का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये अगर कुर्बानी करनी है तो पहले इन रसूम और रिवाज और खराफात की कुर्बानी दे और बोल। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास आए कि सर जी कोई नागी दे छो, सारे घर लड़ाई बड़ी रही है। मैं ही पाया सी तो मैं उतार के दे देता। मैं क्या सरकार लवो ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਵਸਫ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨਵਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਹਜਰੇ ਅਬੀਅਦ ਦੇ ਜੰਨਤ ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੇ नजरे बद पड़े तो रिफ्लेक्ट कर देता है, मोड़ देता है। कोई हसद करे तो मोड़ देता है, कोई बुरी सोच रखे तो मोड़ देता है, कोई गाली निकालने लगे तो मोड़ देता है, कोई तलाक खुले की सोचे तो मोड़ देता है। कहता सर जी ਇਹਦਾ रेट की लगेगा? मैं क्या तू मुफ्त लै जा। कहता एडा कीमती पत्थर ते मुफ्त, लोकी तो बहुत पैसा लेंदे ने। मैं क्या हाँ जी यार, मैं इस दफा जो घर बनवाया सी ना, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ वाइट पत्थर लवाया सी, थोड़ा जिहा बच गया, मैं कट के ਇਹਦੇ ਚ मढ़ा लिया। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। ये तुम्हारे बुत, ये तुम्हारे चांद सितारे, ये हाथों की लकीरें, इन पे ना जा ए मुस्लिम,
नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकता। इनू तो पासा परतन ਲਈ भी मैनू आप कहना पैना इला परत यार, ये मेरे हालात बदलेगा। कहन लगा जी ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਚਾਕੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੀਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਧਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? मैं कह जी वो 5 जियां नाल चलदियां, 5G 5G। जब 2G आया था 3G एक बोतल भी थी ना, आप पीते रहे, पिलाते रहे आपको तेज फास्ट। फिर 4G, अब 5G 5G ऐसे जे जिन्हां दी ताकत चौधरी बनाउंदी जे कुर्बानी तो पहले कुर्बानी, 10 बकरे भी कुर्बानी कर ले। अगर घर में संभालने वाले 5 जियों में से कोई एक जी नहीं, वैसे मैं इनको 5Bs कहता हूं, MBs का दौर है, लेकिन फिर भी पंजाबी में चले ले 5G। पहली जी अम्मी जी, जिस घर की मां जी जिंदा दिल शेर दिल अपने शौहर का साथ देने वाली है, वो कब्रों में भी चला जाए फिर भी उसकी पगड़ी का शिमला ऊंचा रहता है, नाम जिंदा रहता है। हम बखर में गए, कॉन्फ्रेंस थी, रात को मेरा आखिरी खिताब 2 बजे, सारे कहन लगे जी मां जी नूं मिल के जाना। मैं क्या सर माजरत मेरे को एक काम नहीं होंदा, मैं क्लास भी लैनी है। कहते जी ये नहीं हो सकता, जाना पैना। घर में गया, पता चला कि अम्मा जी की उम्र 65 साल है और अपनी जवानी में जितनी भी कॉन्फ्रेंसें होती थी 3 दिन फ्रेश रोटी सालन मां जी का पूरा ग्रुप चलाता था, किसी भी मेहमान को रोटी ठंडी नहीं दी जाती थी। सर जी ये शोहरत जो आज मैं वजीराबाद में बैठ के उस घर की कर रहा हूं, किसकी वजह से है? ये पगड़ी का शिमला ऊंचा। पहली जी मां जी 65 साल की उम्र में भी कॉन्फ्रेंस। कहती पुत जेड़ा तेनों आखिरी खाना गया ठंडा तो नहीं सी? मैं क्या नहीं मां जी। कहते मैं हथी बना के भेजे। सर जी आज माशाल्लाह सारा कुछ मुयस्सर, सुई गैस भी है, सिलेंडर भी है, ओवन भी आ गए हैं, तो फिर भी बच्चे नूं फीडर ठंडा ही पियाया जावे, तो फिर इस बच्चे ने कल चौधरी की बनना है? पहली जी अम्मा जी, दूसरी जी बहन जी। बहनें भाइयों के सर के शिमले ऊंचे कर देती हैं। भाई के मेहमान आए हैं, जी भाजी जी वीरे तुसी उन्हां च बवो बस आया। तीसरी जी बेटी जी, चौथी बीवी जी, इनू भी जी आखीदा है। हां जी इनू ही तो जी क्या, इन्हें बाद चम्मा जी बनना है। और आखिरी जी बहू जी। बहू जी जहां जहां ये 5 हैं या इनमें से कोई एक खड़ा है, आज भी वहां चुदराहट कायम है, वहां डेरे चलते हैं। तो जिथे पंजे दियां पंजे माशाल्लाह सुतियां होण, तो कहण रोटी तंदूरों ले आओ। सुनिया जे ना फिर की हुंदा है। मैं सिर्फ थोड़ी सी गर्मी कम करने के लिए कह रहा हूं, वगरना ये मेरे मौजू का हिस्सा नहीं है। तंदूर ते जाके काली पाइयो, जल्दी करो रोटी दे, मिंट लाए। कहंदा चौधरी जी एडी तेरी फुरदी हुंदी ना, तो फिर इत्थे तंदूर ते ना ओनू घर पकवा लेनू। हौसला रख जरा, मोट ना। सबक क्या मिला? कुर्बानियां। एक और कुर्बानी आ गई। कहन लगे जेड़े तेरे अब्बा जी बुत बनाउंदे ने ना, बड़े वड्डे वड्डे इलाह ने, इन्हां नाल पंगा ना लई, ये लक तोड़ देंदे, लत भन देंदे, ये वो कर देते हैं, वो कर देते हैं। कहने लगे अच्छा ठीक है। ये कह के जदों यार मेले ते गए ना, तो कहंदे तुसी वापस आओ जरा, मैनू वापसी ते मिले जे। वापसी पे आके देखा, चांद भी हार चुका, सूरज भी हार चुका, सितारा भी हार चुका, कुर्बान किए जा चुके। कौम के नजरियों की कुर्बानी दे दी, माबूदों की भी कुर्बानी हो गई है। लिया है कुल्हाड़ा, टुकड़े टुकड़े करके बड़े के कंधे पर रख के आए और कहने लगे हाय तुहाडा की हो गया, ते कौन ते किदां ते एक ही कीती तुहाडे नाल।
ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਣਾ है। पर ऊपर से मुशरिक बड़ा मजबूत होता है। कुर्बानी उसे सिखाती है कि कुर्बानी क्या है। कुर्बानी से पहले कुर्बानी, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पंच लगाया, ओए मेरे से क्यों पूछते हो, ओ जिदे मोढे ते घोड़ा पिया उन्होंने पूछो। तो फिर अंदरों बोले सी इब्राहिम तेनू पता है ये बेचारे कूंदे कुसकदे नहीं, ये बोलते नहीं, इन्हों की पता, ये तो रख रखाव लिए असी रखे ने, चल यार तू ही दस दे। हजरात फौरी तौर पर रिपोर्टिंग हुई, मार्केट में लगी और माशाल्लाह एजेंसियां हरकत में आई, बात फौज सिपाह तक पहुंची, बात नमरूद तक पहुंची, वार्निंग पे वार्निंग दी गई। पुलिस आई तो कहा कुर्बान, नमरूदी फौज आई तो कहा कुर्बान, जो करना है कर डालो। बादशाह थोड़ा जिहा सियाणा सी, बादशाह वैसे भी सियाणे ही होंदे ने, हर सियाणे भाई नूं आपां कह नहीं दिंदे तुसीं भी माशाल्लाह बादशाह ही हो। सियाणा सी कहण लगा यार उन्होंने मेरे को सदो मैं समझाऊना। आए, हाँ इब्राहिम तेरे बारे में ये रिपोर्ट आई है। कहा जी किसको इला मनवाना चाहता है? कहा अल्लाह वादा उला शरीक। कहा क्या करता है, खूबी क्या है? कहा खूबी ये है कि वो जिंदा को मार देता है, मरे हुए को जिंदगी बख्श देता है। कहने लगा एक ही बाकी गल तुसी सुनी है, एक नूं सद्या ते ओनूं मारता जिहदा गुनाह कोई नहीं सी, दूजे नूं जेलों उम्र कैद चढ़ाई ते चल अल्लाह दी सुपुर्द। मौज लग गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई ये माठा तिरा के ये हाले उच्चे पानी च तरन डिया है, कोशिश करन डिया मैनूं डेगण दी, इनू जरा थोड़े जे अगले पानी च खड़ो, गहरे पानी च। पुरानी कुश्तियां होती थी गहरे पानी में, गोते दिए जाते थे, कौन ज्यादा देर सहता है। ले जाया गया, कहा आ इधर आ, बोल मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकाले मगरब में गुरूब कर दे। अगर तेरे में ताकत है निकाल सूरज को मगरब से और गुरूब कर मशरक में, फबोहित अल्लज़ी कफर। सर ये मुनाजरा ऐसे नहीं था, इससे पहले एक पेशकश हुई थी। कहा तू हमारे गॉड मेकर का बेटा है, वजीर मजहबी उमूर बना देंगे। वजीर मजहबी मुल्तान के एक बाबा जी, उन बाबा जी के एक मुरीद वजीर आजम बन गए। उन्होंने अपने बाबा जी के बेटे को वजीर मजहबी उमूर लगाया था कि नहीं? वो जो हज मैटर बने थे, वो गाड़ियां, वो ऊपर बत्तियां, वो माशाल्लाह झंडे, वो प्रोटोकॉल आगे पीछे डाले, किसको अच्छा नहीं लगता? कहा इब्राहिम वजीर मजहबी उमूर इराक का, कहा जूते की नोक पे ऐसी वजारत कुर्बान कर दूंगा जो रब की तौहीद के खिलाफ आए। कहा बैठ मुनाजरा कर, टेबल टाक कर। टेबल टाक हुई, जब देखा कि बात नहीं बनी, कहा इसको जला दो, हर्रिकू। बाकी वाकया आपने सुना हुआ है, मुफस्सिरीन जो रंग भरते हैं, कमाल भरते हैं, खिताबत उसमें मजीद जलाल ले आती है। अग्गा बाल लिया ते हुण सुटना किदां पता ना लगे, मशीन भी कोल कोई नहीं, मशीनरी भी जवाब दे गई। फौजियां नूं कहण तुसीं छड्डो, कहंदे जी साडा की कसूर है, साडे भी एवें नाल तिक्के कबाब बनाओगे, इहदा ते है। अग इन्नी बाल लई जे पागलां वांगू, पहले हिसाब नाल इहनूं उत्थे रख दे, लकड़ां बाहर जुड़दे, फिर अग लाउंदे हो तुसीं, पहले अग ला के बह गए हो। बड़ी बड़ी दास्तानें लिखी हैं। तंग आण के कहण लगे इब्राहिम तू अपे ही टुर जा, चल। कहण लगे मैनू की लोड़ पई है, छड्ड आओ। अल्लाह अकबर। कहानियां अपनी जगह, जान को कुर्बान करने का आसान काम नहीं है, ये रास्ते आसान नहीं है। कुर्बानी दे दी, कहा मुझे अगर मार के तुम राजी हो तो चलो कर लो, लेकिन तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं। आग जलाई गई, तैयार कर दिया गया, मंजनीक बनाई गई, फेंक दिया गया। आसमान से जिसने आग में जलाने की तासीर रखी, आवाज दे दी, कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामा। मेहमान आ रहा है, ज्यादा भी टेंपरेचर थले ना लै जाओ कि कंबल लेना पै जाए। एसियां च लेंदे हो ना, ते इन्ना गर्म भी नहीं कि पसीना आ जाए यार नू। दो में नहीं, बहन बहन सलामा। सर जी आग ने नहीं जलाया, ये एक अलग बात है, अल्लाह का फैसला। छुरी ने नहीं काटा, अलग बात है, रब ने काट खत्म कर दी। जिस समंदर ने फिरौन को डबोया था, उसने मूसा को नहीं डबोया। ऊपर कोई है जो निजाम में हस्ती चला रहा है। आइए सुनिए, कुर्बानी से पहले ये कुर्बानी दी जा रही है। खैर जब नहीं जला,
आखिरी फैसला हुआ, फौज भी मिल गई, सिपाह भी मिल गई, ददियाल भी मिल गए, ननियाल भी मिल गए, यार भी मिल गए, आस्ताने भी मिल गए, आशियाने भी मिल गए, बुजुर्गों के जो है वो उस वक्त के सज्जादा नशीन भी मिल गए। कहा सारे मिलो, बाप को भी बुलाओ, निकालो इसको, फारिग करो ये इस मुल्क में रह के। सर जी शाला दुनिया च कोई कला ना होवे, कला अगर हो सकता है तो सिर्फ एक वहाबी हो सकता है। मैंने पूरी तारीख में ढूंढा है, जुमले पे जरा गौर करना, ढूंढना। अल्लाह वहदहू शरीक है, अकेला है। तारीख में वो दिन आया जब जिंदगी भर की दावत पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक भी फर्द नहीं मिला। सूरह मुम्तहाना में जो है वल्लज़ीना माअहू, ये अगला मामला है। एक भी फर्द नहीं, दिल पे क्या गुजरी होगी। कह देना बड़ा सौखा है, गए हो वो किते पिकनिक ते पहाड़ां वाले कहण आ मुंडा जेड़ा इत्थे छड़ जा, ये नहीं असीं देना। उम्र 86 साल के लगभग हो, बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस वक्त 80 थी। अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं और दुनिया ताने दे रही है, ताने दे रही है। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। इब्राहिम तो साडे बुजुर्गों ने नहीं ना मन्निया, उन्हां सूह बन दी है, नहीं ना होने देंदे कुड़ी मुंडा लई फिर बुढ़ी नूं। तारीख ये भी लिखती है कि दुनिया की सबसे एक नंबर हुस्न जमाल में अगर कोई उस वक्त खातून थी तो सैयदा सारा थी और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आलिया थी। खैर निकलने लगे, साथ चल दी, शाम पहुंचे, फिलिस्तीन क्रॉस किया, समंदर की हुदूद आई, मिस्र में दाखिल हुए। फिरौन वक्त के दिल में जो एक मशहूर वाकया बात आई, और जो उस वक्त की हसीनो जमील मिस्रियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, ये शादीशुदा होके भी फिरौन वक्त का दिल आया। जब हकीकत का पता चला, किस्सा मुख्तसर, उन्होंने अपनी बेटी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दी। जैसे मारिया किब्तिया रसूल सल्लम को वहां के लोगों की आदत थी कि जिसको वो मान जाते थे उसको अपनी बेटी या कोई जो है वो इज्जत आबरू गिफ्ट कर देते थे, और ये हार मानना होता था। खैर तारीख जो लिखती है यहां सुनने वाला है। आपके साथ सबसे ज्यादा बनी इसराइल की दुश्मनी है, और आज के क्रिश्चियंस और ईसाई कहते हैं इस्माइल अफजल नहीं है, इसहाक अफजल है, क्योंकि जनाबे इसहाक सैयदा सारा से हैं, और सारा जो थी वो असली बीवी थी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और जो उन्हें हाजिरा मिली थी ये लौंडी की हैसियत से मिली थी, इसलिए इस्माइल लौंडी के बेटे हैं। उनका वो मुकाम और मर्तबा नहीं है जो इसहाक अलैहिस्सलाम का है। लेकिन हमारा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको दिया, उन्होंने निकाह करा, अल्लाह ने पहले उनसे बेटे से नवाजा, और वो इंसानी क्लैश आना था कि बीवी ने कहा आसमान ने आजमाना था। अच्छा इन्ने साल मंगते रहे, नहीं लभ्या, एक कल आई तो अल्लाह ने मुंडा दे दिता है, चल इनू उत्थे छड़ के आ जिथे नामो निशान ना हो, नामो निशान ना। सर जी इत्थे जरा जेड़े दो जियां दे विच फसे हो, दो करा बैठे हो, ते फिर फसे हो ना दसन जोगे ना छड्डण जोगे, सोचिए छोड़ना। कहा छोड़ के आओ, मिस्र से निकले, नक्शे पे देखना, लुबनान में आए, फिलिस्तीन में आए, चलो दूसरा रूट ले लें, उर्दन से आए, सऊदीया में दाखिल हुए, मक्का पहुंचे और पूरे मक्के में एक भी दरख्त नहीं था, बेआबो गयाबादी, कोई कुआं नहीं है, कोई नलका नहीं है, पानी की जगह नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई अता पत्ता नहीं है दाएं बाएं का, हालात इस कदर, कोई जर्नल स्टोर नहीं कि कुछ जरूरियात जिंदगी सौदा सलफ ले लेंगे या दूध ले लेंगे या पानी ले लेंगे। जब वहां पहुंचे कहा इब्राहिम, बुढ़ापे में मिला जी, अल्लाह जी, कहा इन दोनों को छोड़ो और वापस हो जाओ। सर जी बीवी की कुर्बानी लोग बाप कुर्बान कर देते हैं, विरासती घर कुर्बान कर देते हैं, मां बाप रिश्तेदार कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जेड़ी बीवी इनू नहीं, इनू लैके डूढ़ मरले दे मकान च भावें वजीराबाद दे किसी गोठे च क्यों ना लभे उत्थे आ जाना, लेकिन उसको नहीं छोड़ना। अब्बा फिर भी अब्बा है, लेकिन बीवी
बीवी भी छोड़ दी, छोटा बच्चा भी छोड़ा। यहां मैं मुफस्सिरीन की आरा को नहीं लेता, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, कुरान ने जितने उसलूब में चलाया वही चलिए। किते लारी अड्डे ते अल्लाह ना करे बच्चा ते बीवी गुम हो जान, पता चल जाएगा। सामने आंखों की छोड़ के जा रहे हैं, बुढ़ापे में जा रहे हैं, पहुंचते हैं, अल्लाह बेटा इसहाक दे देता है, उम्र गुजरती है, पता चलता है कि जनाब इस्माइल बड़े हो गए इतने साल के, बाखेल अभी वो जमजम के मामले, अभी वो सफा मरवा की दौड़ के मामले सारे रखिए अपनी जगह पर। कुर्बान मां ने क्या क्या किया, आगे पैगंबर ने क्या क्या किया, रब ने बदले में जमजम कैसे दिया। लेकिन जब आए थोड़े दिन ही रहे ने, कितने लिखे मुफस्सिरीन ने, कुरान कहता है नहीं, आंदे कहते पुत्र ख्वाब वेखे मैं तेनू ज़बा कर रहा, और नबी का ख्वाब, पैगंबर का ख्वाब, अल्लाह अकबर। कुर्बानी से पहले यह कुर्बानी, मुझे पिछले साल एक दोस्त ने कुर्बानी के बकरे की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी, मैं देख नहीं सका तो कालू पे काले हैं, मैंने फोन उठाया, कहते व्हाट्सएप देखो जरा, मैंने देखा तो बकरा था, कान थोड़ा सा कटा हुआ था, ऐ मैं ऐ हिसाब से। कहता जी ये दस्यो कुर्बानी तो लगता है। मैं क्या अपनी तस्वीर भेज, की मतलब अपनी क्यों, मैं क्या पता लगे ना लैन कौन डिया ते एदे बारे पूछण कौन डिया। गुस्सा कर गया, फैसलाबादी था, समझ गया था कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तस्वीर भेजी तो मैं क्या तेरे लिए जिद्दां दा मर्जी लै ला, लूला लै ला, लंगड़ा लै ला, काना लै ला, अन्ना लैना लग जाना। कहंदा जी वो की कुर्बानी दी शर्तां ने, मैं क्या कलियां जानवर ची शर्तां ने, जिन्हें लैनियां ओदियां कोई शर्तां नहीं। ओदा कान कटिया है ते पता नहीं लगू कि नहीं, पूरी दी पूरी दाढ़ी कटी है, परेशानी कोई नहीं। सर जी सुनिए, मेरे फर्स्ट कजन का एम्बेसी में इनाम निकला है, एम्बेसी सिगरेट, पुराना पन्ना मिलिया, पींदा नहीं सी, फिल कीता भेजिया, इनाम निकल आया। किसी ने क्या हराम है, फतवा लैन ली बहावलपुर चला गया, प्रोफेसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, वो मिले नहीं, बेटा अब्दुर्रहमान मक्की, जवानी थी, ये टक्कर पे कहने लगे जी एक फतवा लैन आया, सुनिया जे फतवा जी, क्या फतवा है। कहते जी इदा मेरा इनाम निकलिया है, जायज है कि नहीं। कहते पुत नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, सोच सूच के ना झटक को मसीते च बैठा, हुण झूठ भी नहीं चलता, कहते को दा माना नहीं, आखे पुत तेरे लिए जायज है, जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता वो लिए, वो जिसने रब को यहां नहीं माना वो वहां क्या मानेगा। जिसने पहली कुर्बानियां नहीं की उसके लिए कुर्बानियों की शर्तों के चक्कर वक्कर साइड पे रखो, तो ईद नहीं है तो फिर कोई अमल भी नहीं है। पहली शर्त है, पहली शर्त। खैर वाकया आपने सुना हुआ है, अगे मुफस्सिरीन दे तरीके ने अपनी जगह। बहरहाल ज़बा करने के लिए जब तैयार हुए ना, तैयार हुए, सर जी फिर अल्लाह ने भेजा है मेंढा, छतरा, और उसे कहा है ज़िब्हुन अज़ीम। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं थी, पीछे एक लाइन लगी हुई थी कुर्बानियों की। और फिर रब ने आवाज दी, इब्राहिम बस कर यार, बड़ा आजमा लिया तेन, बस कर, और नहीं चाहिए। छतरा कुर्बान हुआ, असी पोला पोला ते चोंदा चोंदा ले लिया, भी चलो बकरी, छतरी, वच्छा, गां, वैड़ा, ऊंट। लेकिन जेड़ियां पहलियां कुर्बानियां सी, ना पुत्रां दी कुर्बानी दे सके, बाप ने बेटों के गलत रवैयों पे कुर्बानी दी, नहीं हुआ। पता चला इतनी कुर्बानियां देके अब करना है जानवर ज़बा। कुर्बानी ये बाद की है, वो पहले है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ये है तेरे रब के लिए सलाह। कौन सी सलाह? सलवन से वसल ना हो। सलाह कैसी? आज तक नमाजें पढ़ी, रब से मिला ना सकी, रब से मिले होते। नमाज ने चार हालतें दी हैं,
खड़े होते हुए रुकू की हालत में आधा झुक के, सजदे में पूरा झुक के, तशाहुद में धरना दे के तूने तौहीद का ऐलान करना है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ये बकरे ने भी बताया, खड़ा हुआ है तो रब के लिए, तूने दोनों टांगे पकड़ के गिराने लगा तो भी रब के लिए, अकड़ा है तो भी उसी के लिए, झुका है गिरा है तो भी उसी के लिए, छुरी चल गई है तो याद रख, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। ये तकवा है और तकवा विकाया है जो रब के कहने पे, आर्डर पे अमल कर और नहीं से रुकवाए, जहन्नम से बचाए, जन्नत में लेकर के जाए। और वो एक तौहीद है, दूसरी सुन्नत है। तौहीद और सुन्नत का जेवर है तो कुर्बानी खरीदिए। अगर आज दुनिया में ये, इसलिए मेरे दोस्तों, ईद से पहले, कुर्बानी से पहले आज का ये टॉपिक, इसे जिंदगी में पल्ले बांधिए, अपनी डायरी में सरे फर्क लिखिए, हालात जिंदगी में लेकर के आइए, दोस्त अहबाब यारों को बताइए और कहिए कि ये वो कुर्बानियां हैं जिसे सीरत इब्राहिम कहते हैं। सीरत इब्राहिमी कहना बड़ा आसान है कि आज भी आग जो है वो फिर एक गुलिस्तान का अंदाज पैदा कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि पहले वो वफा तो निभा, वो मेयार तो लेकर के आ। आइए, जैसे सारे मसलक मिलके कुर्बानी पे मुत्तफिक हैं, ऐसे हम सब मिलके तौहीद पे, अल्लाह की वहदानियत पे, रब की किबरियाई पे और पैगंबर की सुन्नत के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। इंशाअल्लाह ये कुर्बानियां दुनिया में भी हमारे हक में बन जाएंगी और आखिरत में भी हमारा हक होंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको उस कुर्बानी को समझने की तौफीक दे जो इस कुर्बानी से पहले है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। एक सवाल किसी मेरे ही दरस से है कि आपके दरस में एक बात सुनी थी कि अल्लाह का नाम सत्तार नहीं है। मैंने जितनी भी खुर्दबीनें दूरबीनें होती हैं वो लगा के कुतुब फिक में, कुतुब अहादीस में, कुतुब तफसीर में ढूंढा है। लोगों के यहाँ ये अल्लाह का नाम मशहूर है, पुकारा जाता है, विरद है, लेकिन ऐसे नहीं है। हदीस में इन्नल्लाह सित्तीरुन हय्युन, तुम्हारा रब पर्दे डालने वाला भी है और बड़ा शर्माने वाला है। हय्युन नहीं है, अक्सर लोगों ने इसे हय्युन पढ़ा है। हय्युन, तेरे रब को शर्म आती है कि बंदा रब के सामने हाथ उठाए और अल्लाह हाथ खाली मोड़ दे। तो अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह के नाम तौकीफी है, तौकीफी जिन्हें कोई बंदा नहीं बना सकता, अल्लाह ने अपने लिए खुद चुने हैं और वो अस्माए हुस्ना है, उनमें जो हुस्न है उसी के साथ पुकारना है। तो फिर या सित्तीर कह के आगे आप कहें अल्लाह मेरे पर्दे रख तो ठीक है। क्या कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना जरूरी है? बाजी इस कुर्बानी तो पहले को कुर्बानी आदत से इबादत की तरफ बदलने लगा हूं। किसी जमाने में ये जरूरी नहीं था, मगर आज बहुत जरूरी है कि हिस्से 3 करो तो अगे और भी एक काम करो। जिन्होंने कुर्बानी करनी है जरा दिल पे हाथ रख के ये कुर्बानी दे, इस दफा वादा करें अल्लाह से। मैं लाहौर में गया तो वहां मुनाजरा लगा हुआ था, कई महीनों से चल रहा था वहाबियों और सुन्नियों के दरमियान। वो जड़ी हलाल है कि मकरू है। वहाबी उलमा कहते थे कि हलाल है, वो सुन्नी आलिम बदले में जवाब में दलीलें लाते थे कि मकरू है। मैं गया, मेरा भी दरस था मगरिब के बाद, मैं जरा टाइम पे पहुंच गया, जैसे आज आ गया था अल्लाह की तौफीक से। मैं कहा जी सुनाओ, कहते जी एक मौजू है, तुसी ओजड़ी ते दसना है। मैं क्या ओजड़ी, एडी दूरों सफर करके एक ओजड़ी 2 मिनट की गल है। कहते जी असी 3 महीने तो फसे हैं, फलानी मसीत का मौलवी साडे नाल बैसिया है। मैं ना चुप करके उस मस्जिद में चला गया, लबो लहजे से पता लगा सरैकी है। मैं इस सवाल का जवाब थोड़ी सी तफसील में किसी वजह से दे रहा हूं। मैं गया, मैंने मिला, सोना क्या हाल है, ठीक हो, किवें, किहड़े इलाके दे विच? मुजफ्फरगढ़ दा। मुजफ्फरगढ़ जिले के आगे एक एरिया था, पीछे अबा ठोल लमजादिन, ये भी इलाका है एक, बहावलपुर वाली साइड, रहीम यार खान चन्नीगढ़ से आ गए।
میں کہ اتھا کہ 13 سال تھی گن میں کہ معاملہ ٹھیک پہ چل دینا کہ بیا تا یکا ٹھیک ہے کہ میں وہابے دا مولوی میرے چونے پہ گئے بھئی انہیں میرے وال پڑے ہیں پٹنے ہوا کیا ہے کہ میں اوجڑی کو مکرو آ بیٹھا او آدھے حلال ہے ان ساری آپس وچ لگی پی ہے ہار کون منے میں نے کہا وجہ کیا ہے کہتے مولانا سچ بتاؤں 13 سال ہو گئے ہیں سریکی بولی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی 13 سال ہو گئے ہیں جب بھی مجھے کسی گھر سے گوشت ہے اپنی قربانی دینے کے قابل نہیں ساڈے لی یہاں آ ہندی ہے نرگڑ جی نال پھیپڑے تے سب تو زیادہ مقدار چھچڑے تے اس تو ود اوجڑی تے میرے تے بچے نہیں گھر پکسی یہ چھچڑے سادے کتے ہیں لینے کے قابل نہیں آتا کچھ ہے نہیں بھیجو ماشاءاللہ انہاں قربانی بھیجی اس واقعے نو 13 سال ہونا لینا ہون نہیں کتے اتنے اوجڑی دا مسئلہ بنیا سر جی یہ سوال 3 حصے دا پتہ کیوں ہوندا ہے جدو لوکی شروع چاہتے نے تے آپا کہہ دینے نہیں ہلے کیتی نہیں ٹھہر کے آیا جے جدو ٹھہر کے آتے نے کہندے اسی ونڈ دیتی ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے آپ کا پتہ نہیں تسی فریجاں لے ہو بڑے بڑے تواڈے قریب ماشاءاللہ آلات نے اداں دے او جی ہن اسی ونڈ دیتی ہے سر جی کسی مالوی کسی غریب کسی مسکین کسی یتیم میں نے ایک بچے کو پوچھا پت کدی کلیجی کھادی ہو کہندا جی اللہ دی قسم اسی کدی گوشت نہیں دا منہ نہیں ویکھیا کلیجی کتوں کھانی ہے سر جی میرا پچھلا جمعہ اس موضوع پہ تھا اس سال ایک قربانی دو عادت کو بدلو عبادت میں بدلو جن گھر دے وچ دل تے کلیجی نکلدی ہے نا اینو گھر پکا کے چکھنی نہیں کوئی 2-4 غریب ہمسایاں دے گھر 4 پلیٹاں بھیج دینیاں ہو جائے گا سر چینج آوے نا عبادت کا اپنا مزہ ہے عادت تو ہے جلدی جلدی کر کے بھیجو اسی مسالہ بنایا ہے تے ماشاءاللہ پھر کی مجال جے ایک بوٹی بھی کسی اور نو ٹر جائے کریں یہ چیز اگر نہیں دل مانتا ویسے حصے ضروری نہیں ہے قرآن کی ایسے استنباط ہے بہرحال کر لینے بہتر ہیں تاکہ اسی پھر کوئی اے نہ سمجھیے کہ سارا ہی اپنا ہے یوم عرفہ حج والا دن بنے گا یا کوئی 9 ذی الحجہ یہ مسئلہ تواڈے علاقے بہت زیادہ چلدا مقامی مفتی حضرات تو پوچھو جو مناسب سمجھن میرا ذاتی موقف ہے کہ جتنیاں بھی عبادات نے یہ تاریخ نال نے وہ دی وجہ اللہ تعالیٰ نے جڑے مطالعے رکھے نے مطالعے سمجھتے ہو آج ایک جگہ چاند سعودیہ سے بھی پہلے نکلتا ہے 3 ملک ہیں 4 جہاں پہلے نکلتا ہے تو ان کی عید پہلے ہوتی ہے تو پھر اس دن کا روزہ تو عید کا روزہ بنتا ہے نا تو اس لیے سمجھیے واللہ تعالی عالم نام یوم عرفہ کا ہے تاریخ 9 ہے اور یہی بہتر اور افضل ہے جسے میں سمجھتا ہوں اگر کسی کی رائے اس سے ہٹ کر کے ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے کیا فوت شدگان کی جانب سے قربانی یہ بھی سوال بس جان نہیں چھڑتا سر جی زندہ لوکاں کو نماز نہیں پڑھ ہوندی مریاں دی پڑھنی ہے اپنیاں ہوندیاں نہیں انہاں دیاں دینیاں نے یار جو زندہ لوگ ہیں نا کسی فوت شدہ کی قربانی دینی اس زندہ کو بھیج دو پہلی بات دوسری چیز اللہ نے بڑا خوبصورت سسٹم رکھا ہے اگر والدین کی تربیت تمہارے معاملات میں شامل ہے تو قربانی کر رہے ہو نا تم نیت کرو یا نہ کرو ارادہ کرو یا نہ کرو ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے ہے یہ نہیں کہ یہ ابو کی امی کی اللہ کی رحمت کو تنگ اور محدود نہیں کریں پورے خاندان کے ایک فرد کو جو زندہ ہے اتنا ثواب ملے گا ایک بکرے کا جتنا بڑے کو کرنے والے کو ملا ہے اور ہر اس بزرگ کو دادا کو دادا پردادا آدم علیہ السلام تلک جتنے ہمارے آبا و اجداد ہیں یہ ان کے کھاتے میں بھی اجر اور ثواب صدقہ جاریہ بن کے جانا ہے انشاءاللہ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور اس سوال میں گم ہونے کی بھی ضرورت نہیں اذان کے بعد درود شریف جو ہے کہ امدادی پڑھ سکتے ہیں سر جی جیڑا مرضی پڑھ لو درود سارے ہی چلن گے اسی روک دے نہیں لیکن اگر سنت کے مطابق پڑھنا ہے سمجھ رہے ہو لوکل اور ڈومیسٹک بڑی مارکیٹ میں چیزیں موجود ہیں لیکن اگر آپ نے جینون لینا ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے جو اذان کے بعد آپ نے پڑھا ہے بات سمجھ رہے ہیں چلنے کو تو مارکیٹ میں ہر چیز چل رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جینون کیا ہے لینا کیا ہے چلانا کیا ہے وہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیمی کی شکل میں مسجد کے آگے قبرستان ہو تو نماز ہوگی جی بالکل ہوگی کیوں نہیں مسجد کے آگے قبرستان اگر مسجد بنائی گئی ہے بعد میں وہاں قبرستان کی جگہ مختص ہو گئی ہے
कब्र पहले है फिर तो बिल इत्तेफाक कोई हरज नहीं, लेकिन दरमियान में दीवार है, आपकी नीयत कब्रों को सजदे की नहीं तो दुरुस्त है। अगर कब्रिस्तान के अंदर जानबूझ के मस्जिद बनाई गई है तो ये नुक्ता नजर भी है, महल नजर भी है, इसके ऊपर सोचा जा सकता है और देखा जा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मस्जिद नबवी में भी तो कब्र है। सुन लो, न मस्जिद नबवी के अंदर कब्र है, न कब्र के ऊपर मस्जिद नबवी है। रसूल सल्लम की मस्जिद साइड पे थी, हुजरा साइड पे था, वहां पैगंबर जहां फौत होते हैं वहीं पे दफन होते हैं, तो तदफीन उनकी वहां है। तब ये कब्र मस्जिद नबवी में नहीं, और मस्जिद नबवी भी कब्र के ऊपर नहीं। बाद में तौसीह के तहत जरूरत पड़ी तो कई दफा आप देखते हैं कि बड़ी सारी जो है वो कब्रिस्तान सड़कों के नीचे भी आ जाते हैं, तो कब्र के ऊपर से गुजरना मना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इमरजेंसी के साथ उनका हुक्म बदलता है। एक सवाल है कि क्या मार्केटिंग, नेटवर्किंग यानी ऑनलाइन ये जो क्या लिखा हुआ है, अर्निंग, अच्छा बिजनेस करके कमाना हलाल है? प्लीज थोड़ी सी वजाहत कर दें। भाई बड़ा वाज़ेह सा सवाल है, इसमें जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। जैसे बगैर ऑनलाइन के लाइव जो आप बेचते हैं उसमें भी कुछ हलाल है, कुछ हराम है, कुछ सही है, कुछ गलत है। ऑफलाइन में जैसे हम बैठ के करते हैं, इसी तरह ऑनलाइन में अगर सौदा मजहूल है, पता ही नहीं क्या है, कैसा है, कहां है, और स्टॉक आपके हाथ में भी नहीं है, जस्ट जो है वो कागजी कार्रवाई है या फोन की या एक मैसेज की, तो फिर ये सिर्फ महल्ले नजर ही नहीं है, पूरी तरह महल्ले नजर है। जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? जिना के जुमरे में। देखिए ना, उनके वसाइल हैं, जराए हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसा निकालते हैं। वो सूद के जरिए है, वो धोखे के जरिए है, वो फराड के जरिए है, वो डाके के जरिए है, वो लोगों की जेब मार के है, वो किस तरीके से है तो देखा जाएगा। अगर आपको सोर्सेज का इल्म है तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो मेरे भाई मशकूक है ये कम अज कम, और जो मशकूक है उसे छोड़ना भी इज्जत को और ईमान को बचाना होता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।